नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद पाशा और आप देख रहे हैं RTV कर्नाटका। लियोनार्डो डा विंची के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर सारे विश्व में आज वर्ल्ड आर्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। तो हमारे सारे श्रोताओं को आज वर्ल्ड आर्ट डे की शुभकामनाएं देते हुए आज का जो पैनल डिस्कशन है, एक रिसर्च स्कॉलर जो कर्नाटक के हमारे फेमस एक राइटर है, आर्ट क्रिटिक एंड आर्टिस्ट मिस्टर रहमान पटेल हाल ही में जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड एक पेंटिंग ऑक्शन में सोथबे में ऑक्शन में सेल हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे मिस डॉक्टर रहमान पटेल। वर्ल्ड आर्ट के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हिंदुस्तान के ख़ास करके साउथ इंडिया में जो शेर मैसूर के नाम से मशहूर है टीपू सुल्तान, जो ये पेंटिंग जो साउथ ईस्ट लंदन में हाल ही में मार्च 30 को ऑक्शन में 6.28 करोड़ में सेल हो चुकी है, जो यूके के एक प्राइवेट कलेक्टर ने उसको कलेक्ट किया है। तो मेरा कहना यह है कि आर्ट वर्ल्ड में वैसे तो बहुत सारे पेंटिंग सेल होते रहते हैं, मगर एक किंग जिन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट किया 1780s में, तो वो पेंटिंग जो 32 फीट की है, जिसके 10 स्ट्रिप्स हैं, पेपर पे काम किया गया है, तो वो पेंटिंग आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के तौर पे जो है अपना मकाम बना चुकी है। तो उसकी खूबसूरती जो है, किस तरह के उसके अंदर कॉम्पोजिशन है, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर बताया गया है, किस तरह से उसके अंदर वॉर का जो है सीन उसके अंदर क्रिएट किया गया है, और उसके साथ साथ वॉर जो है जंग जीतने के बाद उसका सेलिब्रेशन किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से उस पेंटिंग के अंदर जो है खूबसूरती बयान की गई है। इस आर्टिकल के बारे में जो है मैंने आर्टिकल लिखा है, तो इस आर्टिकल में इस तरह से मैंने एलाबरेट किया है। डियर फ्रेंड्स, हियर डॉक्टर रहमान पटेल, artist and researcher. We have a good news of a painting of Tipu Sultan's historic victory over British, which has fetched rupees 6.28 crore in Sotheby's auction. So, it's a historical record of Karnataka rulers' artifact that fetched the highest price in auction. A painting that showcases the erstwhile Sultan of Mysore Haider Ali and his son Tipu Sultan riding into the battle against the British troops of the East India Company has fetched about the amount of the auction which has fetched the painting is rupees 6.28 crore, that is 6,30,000 pounds in an auction which has auctioned by the Sotheby's on March 30, 2022. So here that the painting vividly illustrated depicting a historical victory of Mysore ruler Haider Ali and his son Tipu Sultan over the East India Company in 1780 went under the hammer in London on Wednesday for whopping 630,000 pounds. About 32 feet long painting depicts the Battle of Pollilur, which took place on September 7, 1780 AD as part of the Second Anglo-Mysore War, was the centerpiece of the Islamic art world and India sale at Sotheby's auction house. The painting shows British soldiers struggling against the Mysore army. As a visual record of the battle and to commemorate his victory, Tipu Sultan has commissioned a painting of the Battle of Pollilur as part of a large mural for the newly built Darya Daulat Bagh in Srirangapatnam in 1784. The left side of the painting shows Haider and Tipu Sultan looking on the majestically and impassively at their trim. Tipu Sultan with magnificent sang-froid snips a single red rose as if on a pleasure outing to a garden to inspect his flowers. According to a BBC report, some of the scenes on the monumental painting were also painted at least twice on paper using ink and gouache pigments. One of those paintings was sold at
Sotheby's auction in 2010 and was acquired by the Museum of Islamic Art in Qatar. The painting was brought to England by Colonel John William Freese, who was in Srirangapatnam after Tipu's defeat in 1799. Freese's families handed it down over generations before selling it to a private collector in 1978, who then sold it in 2010. The work that was auctioned on Wednesday is part of a private collection in the UK and has been displayed at several exhibitions in the past. On the other end of the painting, the Mysore army is shown attacking the company forces on both sides as they form a square around an injured Scottish soldiers named Colonel William, sitting in a palanquin, who had led a command of 4,000 Indian Sepoys. What this painting has is the terror and anarchy and violence of battle. It's arguably the greatest Indian picture of the defeat of colonialism that survives. It's unique and fantastic artwork, said Sotheby's expert William Dalrymple, author of The Anarchy, the Relentless Rise of the East India Company. He writes in a note on Sotheby's website that the panorama, which presents one of the crucial turning points of the Indian history, has been realized with extraordinary vivacity and energy that has few rivals in the art of period. The painting extends over 10 large sheets of paper nearly 32 feet long and focuses in on the moment which accompanies ammunition tumbril explodes, breaking the British square while Tipu's cavalry advances from left and right like waves of an angry sea, according to the contemporary Mughal historian Ghulam Hussain Khan. The pink-cheeked and rather effeminated looking company troops wait fearfully for the impact of the Mysore charge as the gallant and thickly mustachoed Mysore lancer close it for the kill. He writes, Tipu Sultan was probably the most effective opponent that the East India Company ever faced. Tipu showed that the Indians could fight back, that they could win the first time that a European army is defeated in India is this Battle of Pollilur, he explains. Thank you. बड़ी खुशी की बात है वर्ल्ड आर्ट डे के मौके पर आज जो टीपू सुल्तान के पेंटिंग को लेके यहाँ पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब 2013 में लंदन में था ब्रिटिश म्यूज़ियम में, जब ब्रिटिश म्यूज़ियम देख रहा था तब ज़्यादातर मेरा गौर फिक्र हमारी सल्तनत बहमनी के तरफ तवज्जो थी, जो मैं ज़्यादा बहमनी के चीज़ें देख रहा था वहाँ पर। अचानक से टीपू सुल्तान का हाल देखने के बाद, टीपू सुल्तान के हाल देखे 5-6 हाल टीपू सुल्तान के वहाँ पर, टीपू सुल्तान की पेंटिंग ही नहीं। टीपू सुल्तान जब जंग जाते थे, जंग को जाते वक्त उन्होंने जो टेंट डालते थे वो टेंट मौजूद था आराज में। टीपू सुल्तान के खालीन, टीपू सुल्तान जो बिछाते थे गादी गोतखिए, टीपू सुल्तान के उनके चप्पल और जो भी जंग में पहनते थे वेयरिंग, उनका जो शैली स्टाइल था। इवन टीपू सुल्तान की हाथ के पहनने में अंगूठियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ तलवारें जो ब्रिटिश म्यूजियम में, जो ब्रिटिश लोगों ने लंदन में सजा के रखा है। बदकिस्मती बोलता हूँ मैं, वो चीज़ हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान का हमको देखने को नहीं मिलता। बड़े अफसोस होती, लेकिन खुशी की बात यह है आज 6.5 करोड़ में जो टीपू सुल्तान की पेंटिंग है। टीपू सुल्तान ब्रिटिश के आर्मी ये सोल्जर के अंदर घुस के मार रहे तो पेंटिंग है, ये ऐसी पेंटिंग नहीं है। उनके फौजों में घुस के मार रहे तो शेर कर्नाटक, ये शेर कर्नाटक मामूली खिताब नहीं है। दुनिया टीपू सुल्तान को नॉट ओनली 556 रजवाड़े जानते थे हिंदुस्तान में,
ऑटोमन एम्पायर भी टीपू सुल्तान को जानते थे, ब्रिटिश एम्पायर, रोमन एम्पायर जो भी थे वो जब वो दौर में पूरे एम्पायर्स टीपू सुल्तान के बहादुर के बारे में जानते थे। बड़ी खुशी होती है। और मेरे साथ बहुत सारे दानिशर है, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल में 26 साल काम करके हैं हाजी मलंग साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं बात। टीपू सुल्तान 300 साल के बावजूद भी आज भी सारी दुनिया में उनकी पेंटिंग इतने महंगे 6.3 मिलियन में बिकती है, तो आप सोच सकते हैं कि टीपू सुल्तान का क्या वैल्यू है। आज शहर मैसूर टीपू सुल्तान अपने 17 साल की पीरियड के अंदर आज भी जिंदा जो नाम करके चले गए, वो आज भी आप जान सकते हैं टीपू सुल्तान कितने मशहूर है। हिंदुस्तान के बाहर भी सारी दुनिया में उनका नाम रोशन है। 17 साल की पीरियड के अंदर जितने उन्होंने जंग के अंदर ब्रिटिशों को जिस तरह नाक से चने चबाए, ये जान के सभी लोग बहुत खुश भी होते। अरब मुल्कों में उनका बहुत ज़्यादा नाम भी है। हेलो एवरीवन, मैं शेख एहसानुद्दीन। आज वर्ल्ड आर्ट डे के दिन आज जो डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि जो है ना आज भी हमारे मुल्क की पेंटिंग और हमारे मुल्क के राजा का नाम और उनकी शैली या फिर उनके जंग के बारे में या फिर उनकी हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ मशहूर है अब्रॉड भी। और लंदन में इतनी बड़ी पेंटिंग सोल्ड भी 32 फीट, और उसके अंदर हम गिन नहीं सकते इतने फिगर्स हैं, और 10 खरी पैनल्स में वो फैली हुई है। और मुझे देख के मुझे याद आया कि हम जब प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में थे, तो यही ड्राइंग्स शिवाजी हो या फिर टीपू सुल्तान हो, हुमायूं हो, बाबर हो, ये ड्राइंग से हमने अपना सफ़र शुरू किया था ड्राइंग का, और उनके बारे में हमने पढ़ा। और लेकिन आज ये हालत है कि ना यहाँ पर चीज़ें मिटाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारे बच्चों को या फिर उनकी नस्लों को ना इनके बारे में सुनने का, पढ़ने का, और इनके बहादुरी के किस्से या फिर इनके बारे में जो भी सच्चाई थी पढ़ने का मौका मिले। और इसी तरह से जो ना हमारा मुल्क का नाम, हमारे मुल्क के बादशाहों का नाम या फिर मुल्क की कोई भी चीज़ दुनिया भर में मशहूर होती रहे, ये मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आपने इस पेंटिंग को देखा होगा। बहुत सारे ऑक्शंस वर्ल्ड भर में चलते रहते हैं 12 महीने, और काफ़ी पेंटिंग्स की मांग अभी भी मौजूद है आर्ट मार्केट में। और जो भी कलेक्टर्स हैं, मैं गुजारिश करता हूँ जिन्होंने ओल्ड एंटिक्स या पेंटिंग्स को खरीद कर रखा है, और उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। आने वाले दौर में पता नहीं कौन सी पेंटिंग, कौन सा स्कल्पचर्स, कौन सा एंटिक्स किस दाम में बिकेगा, किस मुकाम पर पहुंचेगा, ये सारे वक्त ही बताएगा। और यकीन मानिए, एक एक पेंटिंग एक गांव खरीदने के बराबर होती है। इतना बड़ा दाम और इतनी इसकी पहुंच है। और कलेक्शन करने के लिए अभी पूरा मौका है। जो अपकमिंग आर्टिस्ट है या सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट इंडिया में मौजूद हैं, उनके काम आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप आर्ट टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह के नए नए न्यूज़, आर्ट से रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe our TV Karnataka, Karnataka's first art news channel.